Hello everyone. Today we will do class 5 chapter 2 food and health book exercise and question answer. A. Tick the correct answer. First, to stay healthy our body needs. अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या ज़रूरत है? ऑप्शन ए बैलेंस डाइट, बी बुक्स, सी ब्रेड एंड डी ओनली मिल्क. ऑप्शन ए इज राइट, a balanced diet. Second, which of the following is a non-communicable disease? Option A chicken pox, B beriberi, C common cold, D measles. Option B is right, beriberi. 3. The disease is caused by a virus. Option A typhoid, B malaria, C meningitis, D chickenpox. Option D is right, chickenpox. Chickenpox is a viral disease. Fourth, the spread of communicable disease can be prevented by communicable disease को प्रिवेंट के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए स्पीटिंग, बी कफिंग, ऑप्शन सी कीपिंग क्लीन एंड डी हैविंग मेडिसिन्स. ऑप्शन सी इज राइट, हैविंग keeping clean. 5. Vaccination can protect against disease like polio, measles and option A AIDS, B malaria, C mumps and D fever. Option C is right, mumps. B. Complete the table. इसमें दो टेबल बने हुए हैं, इधर न्यूट्रेंट लिखा हुआ है, इधर न्यूट्रेंट है और इधर ये फाउंड इन, यानी जिन चीज़ों में ये न्यूट्रेंट पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं. फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? पोटैटो, शुगर, पल्सेस एंड सीरियल्स. सेकंड इज़ प्रोटीन. Protein is found in milk, eggs, meat and pulses. Vitamin A. Vitamin A found in carrot, cheese, butter, tomato. Vitamin C. Vitamin C is found in tomato, orange, आंवला, कैबेज. विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, ऑरेंज एंड लेमन. आयरन एप्पल, बनाना, डेट्स एंड गुआवा. सी मैच द फॉलोइंग. इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं. न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी इस विटामिन की कमी से जो बीमारी होते हैं उसके नाम लिखने हैं. एंड थर्ड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, और डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं वो मैच करने हैं. फर्स्ट इज़ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी विटामिन ए की कमी से, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं, रात में कम दिखाई देता है. And symptoms of disease is patient cannot see in dim light. Second is vitamin B1. B1 की कमी से बेरी होता है और इसके सिम्टम्स हैं affects the nervous system. विटामिन सी. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक डिजीज़ होता है और इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से ब्लीडिंग आने लगती है. विटामिन डी. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और इसके सिम्टम्स हैं बोन्स बिकम सॉफ्ट. फिफ्थ आयोडीन. आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है और इसके सिम्टम्स हैं ए ग्लैंड इन द नेक रीजन swells up. D. Fill in the blanks. First, our body needs dash protection from disease
regular exercise and dash to keep fit. Our our body needs balanced diet, protection from disease, regular exercise and enough rest to keep fit. Second, our food should have enough dash to get rid of undigested food. Our food should have enough roughage to get rid of undigested food. Third, we must play dash games to keep our body fit. We must play outdoor games to keep our body fit. Fourth, dash and dash are caused by bacteria. Plague and typhoid are caused by bacteria. Dash is a virus that attacks the immune system of the patient and leads to death. HIV is a virus that attacks the immune system of the patient and leads to death. Next, question answer. Write short answers. What is a deficiency disease? Disease which is caused due to deficiency or the lack of a particular minerals or vitamins in the body is called deficiency disease. जो डिजीज़ पर्टिकुलर मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से होते हैं उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नेम ए डिजीज़ काउज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन फूड. आंसर. एनीमिया इज़ काउज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन फूड. फूड में आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है जिसमें बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. तो वह डिजीज़ जो कि सिक पर्सन से यानी बीमार आदमी से एक हेल्दी पर्सन को हो जाता है तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. Which disease are caused by eating contaminated food? Disease like typhoid, cholera, diarrhea and jaundice caused by eating contaminated food. Question number 5. Name 3 diseases for which you have been vaccinated. Answer is polio, typhoid and measles. F. Answer these questions. Question first. How do houseflies spread disease? Houseflies disease कैसे spread करते हैं? Answer is houseflies carry germs from sewers and contaminate our food and water. And if we consume that contaminated food and water, we will fall ill. हाउस फ्लाइज सीवर से अपने साथ जर्म्स कैरी करते हैं और जब ये हाउस फ्लाइज हमारे फूड एंड वाटर पर बैठ जाते हैं तो ये जर्म्स फूड एंड वाटर में चले जाते हैं और जब इस भोजन या पानी को जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर जर्म्स के कारण फिर हम बीमार हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. What precautions would you take to check the spread of malaria? मलेरिया को फैलने से बचाने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? आंसर इज प्रिकॉशंस टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया आर. फर्स्ट, नॉट लेटिंग वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर. पानी कहीं भी कलेक्ट नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज़ यूज ऑफ मस्कीटो किलिंग स्प्रेज एंड फास्ट कार्ड. मॉस्किटो से बचने के लिए स्प्रे या फिर फास्ट कार्ड का यूज करना चाहिए. थर्ड, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट वाइल स्लीपिंग. और सोते समय हमेशा मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए.
Question number 3. Explain 2 ways of controlling communicable disease. Answer. 2 ways of controlling communicable diseases are: first, children suffering from any communicable disease like common cold, chickenpox, whooping cough, etc. Those children should stay away from school till they are fully recovered. जो भी बच्चे यदि कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और वूपिंग कफ मीन्स सर्दी खांसी जैसे बीमारी से यदि ग्रसित हैं तो उन बच्चों को स्कूल से दूर रहना चाहिए जब तक कि वे पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, फुल्ली रिकवर्ड ना हो जाएं. Second point is the floor and the walls of the rooms must be sprayed with a disinfectant. रूम्स के फ्लोर्स एंड वॉल्स को स्प्रे करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेप्स वुड यू टेक टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम ए सिक पर्सन. एक सिक पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन से जर्म्स को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं. आंसर इज स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम ए सिक पर्सन आर: फर्स्ट, we should not use articles like clothes, combs and towels used by a sick person. इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा जो भी क्लॉथ, कॉम्स और टॉवल्स यूज किया जाता है उसे यूज नहीं करना चाहिए, उसे धो करके फिर यूज करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, वी शुड यूज़ टिश्यू पेपर्स वाइल स्नीजिंग और कफिंग. स्नीजिंग और कफ के लिए टिश्यू पेपर का यूज करना चाहिए. थर्ड पॉइंट, वी शुड एवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद ए सिक पर्सन. सिक पर्सन के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए. पॉइंट 4, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग. खाना बनाने और खाने से पहले हाथ को धो लेना चाहिए. Question number 5. What is meant by pasteurization of milk? Pasteurization is done to kill harmful germs present in milk. मिल्क में प्रेजेंट हार्मफुल जर्म्स को किल करने के लिए पेस्चुराइजेशन प्रोसेस किया जाता है. इन दिस प्रोसेस मिल्क इज़ हीटेड एट ए हाई टेम्परेचर फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर एंड कूल डाउन क्विकली टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन मिल्क. इस प्रोसेस में मिल्क को हाफ एन आवर हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और उसे फिर क्विकली कूल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. राजू हैज़ ब्लीडिंग गम्स एंड swollen joints. नेम द डिजीज़ ही इज सफरिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज the cause and remedy of the disease. Answer. Raju is suffering from scurvy. It is caused by the deficiency of vitamin C. He should take rich amount of vitamin C foods like amla, tomato, potato, green leafy vegetables, citrus food, sprouted grains and pulses, etc. Thanks for watching.